All right, so let's start our today's lecture. Previously, we have looked into some of the assembly instructions, and today we look into this program status register. So this has the program status register has many flags. All right, so they are divided into three different types of status registers. One is the application PSR, and then interrupts. You have seen interrupts in the microcontrollers course that when we need to assign some task to the microcontroller and do not want to disturb the main task, so then we use the interrupts, like the timer interrupts and the serial communication interrupts. So that we will study in the interrupts chapter later on. So this program status register will be used for those interrupts. And then the next one is the execution PSR. At the execution of different instructions, this program status register will be used. The most important ones, those are these 5 or 4 flags, which we have already discussed before as well in the arithmetic operations. Like the first one is the negative flag. All right, so the negative flag is set, it will be 1. So remember when we talk about ये आप लोगों ने DLD में पढ़ा होगा that when we say that a flip-flop is in the set condition, we means it is the output is 1. Okay, and when we say that it is in a reset condition, so the output is 0. So that is what we are looking into here, that the negative flag will be set if the result of the ALU is negative. All right, और वो negative को कैसे check करता है, that ALU, we have seen that the ALU has 2 inputs जो कि registers से आ रहे होते हैं. Let's say it is coming from a register R2, and the second number is coming from another register that is, let's say, R4 or R5, जो भी वो general purpose registers हैं, उनमें से ये दोनों values आ रही हैं, and then the ALU is generating the output. So this one is the ALU, arithmetic logic unit. At some points, we also call it the ALSU. So arithmetic, logic, and shift unit. So this module can perform the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. At the same time, it can perform the logic operations as well, like and, or, exclusive, or not operations, so these logic operations. And then at the same time, it can perform the shift operations as well. जो कि हमने last class में देखा था, that we can do the logical shift left of any register, or we can do the
rotate operation as well. That also comes under the shift operation. So this ALSU is responsible for all of these operations. So again, back to the main topic that the ALU performs the arithmetic operation, and then we have the result over here. All right, so this result is actually of how many bits? R2, कोई बताएगा what is this, what is the size of this R2? 10 bits, 20 bits, 8 bit, 16, how many? आओ ना बताओ. Sir, I think it's 8 bit. कोई और बताएं. अवेमर, आप बताएं. I think 16-bit. 16 बिट. और कोई बताएं. आयशा है, नवीरा, साद. इट इज़ एक्चुअली 32 बिट्स. हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है. That what is the size of these general purpose registers. तो काइंडली ऐसा ना करें कि आप न्यू लेक्चर्स को पे आ रहे हैं और प्रीवियस आपको बिल्कुल भूल रहा है. मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में ही बताया था दैट ठीक है, डीएलडी के कॉन्सेप्ट्स आपको अगर नहीं आते, माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम आई एक्सपेक्ट कि वो आपको नेक्स्ट क्लास में आ रहे हो. तो थोड़ा सा अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें. दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर है R0, R1, R2, R3 और जो R11 तक जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, उसका साइज क्या है. सो दैट इज़ 32 बिट्स. तो दिस इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क. तो अगर आप उस पे भी आंसर कर रहे हैं 8 और 16, और अगर आप खामोश है, आपको आंसर नहीं आ रहा, तो दिस इज़ प्रीटी अलार्मिंग. ये कोई अच्छा साइन नहीं है. ठीक है. सो बोथ ऑफ द रजिस्टर्स ओवर हियर, दिस वन एंड दिस वन, जो कि ALU के इनपुट पे हम दे रहे हैं, दीज आर 32 बिट्स. तो रिजल्ट जो है वो भी 32 बिट्स का होगा, starting from 0 until 31 bit. ठीक है. तो ये हमारा रिजल्ट होगा 32 टोटल बिट्स का. 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 until 32. तो अब जो ये again I was talking के ALU result is negative, तो ये फ्लैग जो है, नेगेटिव फ्लैग जो है, वो सेट हो जाएगा. लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि ALU से जो रिजल्ट आया है दैट इज नेगेटिव. सो actually the processor looks into this bit which is the most significant bit, which is 31st bit. अगर तो ये 1 है हमारे पास, तो इट मीन्स द रिजल्ट जो है दैट इज नेगेटिव. तो रिजल्ट में जब ये 31st बिट, जो ये लास्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर ये 1 हुआ, तो देन दिस फ्लैग, द नेगेटिव फ्लैग विल बी सेट, ताकि प्रोसेसर जो है वो यूज़र को बता सके कि आपका जो रिजल्ट आया है दैट इज़ नेगेटिव. राइट. एंड अदरवाइज ये जो है ना एन फ्लैग, ये 0 ही रहेगा. जब भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो ओनली इन दैट केस
the negative flag will be set. The next one is the zero flag. This one is easier. Again, it is looking into the ALU result. So ये जो zero flag है, इसको set किया जाएगा if the ALU result is 0. मेरा पेन कहीं सामान में आगे पीछे हो गया तो माउस से कर रहा हूँ. The writing is not that good, but गुजारा करें इसके साथ. The zero flag will be set if the arithmetic logic unit से जो result हमारे पास आया है अगर वो zero है. For example, अगर हम कोई value है -3 और उसको add करें +3 के साथ, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें तो इससे रिजल्ट हमारा 0 आएगा. तो उस केस में ये जो ज़ीरो फ्लैग है विच इज़ हियर, अगर हम उस ज़ीरो फ्लैग को देखेंगे, दिस फ्लैग इज़ अ 1 बिट. ईच फ्लैग over here is 1 bit. ठीक है, नेगेटिव फ्लैग भी 1 बिट है, जीरो फ्लैग भी 1 बिट है, कैरी फ्लैग भी 1 बिट है, एंड देन ओवरफ्लो फ्लैग इज आल्सो 1 बिट. तो उस 1 बिट में हम एज अ यूज़र उस प्रोसेसर में देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो ज़ीरो है या नहीं है. इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सिनारियोज कि अगर आपने जंप परफॉर्म करना है तो वो भी इस ज़ीरो को देखता है. तो फिर उसके यूजेस को हम आगे फर्दर देखेंगे, बट एट दिस स्टेज वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इन फ्लैग्स का काम क्या है. ठीक है, so this is the zero flag. Then the next flag is the carry flag and overflow flag. और इस पे हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं दैट द ओवरफ्लो फ्लैग कब 1 होगा और कैरी फ्लैग कब 1 होगा. So the carry flag is actually set if a carry occurs in the unsigned addition. ठीक है, और unsigned subtraction के लिए it is set if the borrow has occurred. ठीक है, तो ये इसका जो है ना अनसाइंड खेरी का जो पर्पस है दैट इज इन द अनसाइंड arithmetic operation, unsigned addition हो या unsigned subtraction हो, so then we look into the carry flag. लेकिन अगर हम signed numbers पे कुछ operation perform करेंगे, so then this overflow flag is useful for us. ठीक है, the overflow flag this overflow flag will be set. Set means 1 if an overflow takes place when performing signed addition or subtraction. और overflow भी उसी तरह है कि आप अगर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपका जो है ना जो रिजल्ट है वो एक्सीड हो जाता है. यहाँ पे जो रिजल्ट आपके पास आया है वो मोर देन 32 बिट्स है. So then the overflow flag will occur. But remember just one thing कि carry flag जो है वो हम उसको unsigned numbers में use करते हैं और carry flag को हम unsigned numbers में use करते हैं. और when we do the signed operation, so then we look into the overflow flags. The next flag, that is the Q. So Q is actually the saturation bit. या आप इसको कहें saturation flag.
So saturation occurs when you perform the when you perform the arithmetic operation और आपका result जो है वो उस जो destination register है उससे ज़्यादा है. For example आपने 32 bit और 32 bit को add किया लेकिन result जो है वो 33 bits का आया है. तो अब वो 1 बिट जो है वो कैरी में भी नहीं जा रहा, ओवरफ्लो में भी नहीं जा रहा, बट जो प्रोसेसर है वो उसको क्लैंप कर लेता है. क्लैंप मींस उस 33 बिट वैल्यू को 32 बिट में ही क्लैंप कर लेता है. सो देन दैट मींस के प्रोसेसर ने आप यूजर को बताना है दैट आई हैव परफॉर्म्ड द सैचुरेशन. सो इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं. सर ये That नहीं is समझ आया, कीजिएगा. उसके लिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द signed saturation and unsigned saturation, USAT. ठीक है, so the saturation will be set if these two instruction causes the saturation. तो saturation को फिर हम आगे भी देखेंगे that how these example से फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम जब दो values की arithmetic operation perform करते हैं and in this case these are the signed or unsigned numbers. तो वो प्रोसेसर उसको क्लैंप कर लेता है ताकि रिजल्ट जो है वो डेस्टिनेशन बिट्स में हमारे पास आ सके. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे हम सीलिंग परफॉर्म करते हैं, सीलिंग एंड फ्लोरिंग. ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ी होंगी कि हम सीलिंग में उसको राउंड ऑफ करते हैं टुवर्ड्स द मैक्सिमम, टुवर्ड्स द टॉप वैल्यू, और फ्लोरिंग में हम उसको टुवर्ड्स बॉटम वैल्यू राउंड ऑफ करते हैं. सो दैट इज हाउ द डिजिटल नंबर्स आर ऑल्सो brought to the destination स्पेस. तो उस केस में प्रोसेसर फिर आपको इन्फॉर्म करता है कि ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं दिस इज नॉट द एक्चुअल रिजल्ट, आई हैव बीन सैचुरेटेड इट, और आप इस रिजल्ट को आप उस तरह से आप देख लें. जैसे हमने यहाँ पे ओवरफ्लो और जो कैरी फ्लैग है उसमें भी देखा दैट द प्रोसेसर इज इन्फॉर्मिंग ऑफ सिचुएशन. तो इसी तरह ये सैचुरेशन फ्लैग भी काम करता है एंड इट इज ऑल्सो 1 बिट. इसके अलावा सम बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस. जैसे मैंने आपको ये इंटरप्ट्स का बताया दैट वी विल लुक इनटू that how this interrupt service routine number is useful. लेकिन यहाँ से आप सिर्फ ये नोट कर लें that this number is a part of the program status register. ठीक है, इसकी यूजेज हम फिर बाद में देखेंगे that how जब इंटरप्ट हम प्रोसेसर का यूज करते हैं, so how this interrupt service routine number is useful. Another important is the GE, which is the greater or equal to. ये हमारे पास I think 3 or 4 bits हैं. And it also indicates the greater or equal to. जैसे मैंने आपको last time बताया था that when the processor perform the not equal operation, तो वो क्या करता है that it adds up or subtract two values. let's say आप उसको 4 और 3 का बताएं कि ये दोनों values equal है या नहीं है, तो वो क्या करता है कि 4 से 3 को माइनस करता है. इफ द रिजल्ट इज अ नॉन जीरो वैल्यू, सो इट मीन्स these two values are not equal to each other. So in that case the zero flag is used कि वो दो values को
सब्ट्रैक्ट करता है एंड देन लुक इनटू द ज़ीरो फ्लैग, कि अगर ज़ीरो फ्लैग हमारे पास 1 हुआ तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये इक्वल हैं। लेकिन अगर ज़ीरो फ्लैग 1 नहीं हो रहा तो इट मीन्स कोई भी एक नंबर जो है वो लार्जर है फ्रॉम द अदर वन, दैट इज़ वाई आवर रिजल्ट इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। लेकिन अब हम ग्रेटर और लेस देन कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर दैट द प्रोसेसर हैज़ द सम स्पेशल बिट्स एज वेल, जो कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर का हिस्सा है। ठीक है, सो देन और ये कुछ प्रोसेसर्स में अवेलेबल हैं, कुछ प्रोसेसर्स में ये यूटिलाइज होते ही नहीं है, जैसे कॉर्टेक्स M4 में और M7 में दीज आर यूजफुल। ठीक है, एग्जीक्यूशन PSR को भी हम लेटर पार्ट में देखेंगे। एट द मोमेंट दीज फ्लैग्स आर इम्पोर्टेंट, ये 5 एंड द GE, जिस पे हम पहले भी कैरी एंड ओवरफ्लो को काफ़ी डिटेल से हम देख चुके हैं। ये नेगेटिव और ज़ीरो और सेचुरेशन भी आज आपने देख लिया। ओके, सो सेचुरेशन फ्लैग भी यहाँ पे हमने इसको एलाबोरेट कर लिया, बट सेचुरेशन इज आल्सो नॉट वेरी इम्पोर्टेंट एंड नॉट वेरी frequently used flag for the processor. But these 4 flags जो कि रेड कलर में हैं, these flags are the most important flags जो कि प्रोसेसर इसको मोस्ट ऑफ द टास्क्स में यूज़ करता है। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं दैट व्हेन दीज फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड एंड हाउ दीज फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड। All right, so the important thing over here is that updating of the these 4 flags जो कि negative, zero flag, carry flag, and overflow flag. So these 4 are the most important flags in the program status register. अब प्रोसेसर इन फ्लैग्स को कभी अपडेट करता है, कभी नहीं करता। सो इट डिपेंड्स ऑन दी these instructions. So I told you in the beginning that we are studying the instruction set architecture. ठीक है, तो हर प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। इंस्ट्रक्शन सेट इज़ दी सॉफ्टवेयर साइड के कौन कौन से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये सपोर्ट करता है, एंड आर्किटेक्चर मींस दी हार्डवेयर पार्ट के इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन से फ्लैग्स इसमें अवेलेबल हैं, कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल है। मैंने आपको उसके बारे में बताया, जो प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं एंड पेरिफेरल रजिस्टर्स हैं। हमारे लास्ट लेक्चर का ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि प्रोसेसर रजिस्टर जो कि CPU के करीब जो रजिस्टर्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे आज क्वेश्चन भी किया था कि ये कितने बिट्स का है, जो कि आपको नहीं आ रहा था कि 32 बिट्स के वो रजिस्टर्स हैं सारे। तो काइंडली अपनी जो भी हमने
प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करते जाएं ताकि आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स आसानी से फिर समझ आ सके। तो ये सॉफ्टवेयर साइड भी हम पढ़ रहे हैं और हार्डवेयर साइड भी पढ़ रहे हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें प्रोसेसर के आर्किटेक्चर है उसकी समझ आ जाए कि प्रोसेसर जो है इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को रन कैसे करता है। ठीक है, तो इस दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग डीपर इनटू द हार्डवेयर साइड। अब वी सिंस वी हैव स्टडीड अबाउट दीज फ्लैग्स, तो जो आर्म का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देता है इन द फॉर्म ऑफ ऐड एंड एड एस। तो ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर प्रोग्रामर चाहता है कि मैं एडिशन तो परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो वैल्यूज़ है, जो द इनपुट्स दैट आई गिव, there is a chance that the flags will also be affected. I want to see कि मेरा रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देन the processor will update the flags. So then the programmer needs to use this instruction, that is add s। लेकिन अगर प्रोग्रामर वांट्स कि मैं बस जस्ट दो वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूँ, आई डू नॉट नीड टू सी दैट व्हाट इज द रिजल्ट इज अ जीरो, द रिजल्ट इज नेगेटिव, और द रिजल्ट ओवरफ्लोज, और व्हाट द रिजल्ट कम्स आउट। आई जस्ट वांट टू सी द रिजल्ट, वो ज़ीरो है या ओवरफ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। I do not care about that. I just want to add these two numbers और मुझे result चाहिए। So then the processor can use this add instruction, और programmer अपना जो code है वो इस add instruction के through लिख लें। So then this add instruction will not change the flags. वो सिर्फ आपको addition perform करके देगा and will not change any of the flags। अगर आपका result zero भी आ रहा है, but the zero flag will not be changed. So that applies on all of these instructions. Subtraction के लिए भी हमें दो instructions दी गई है कि अगर आपको flags को change करने हैं तो then you have to use this sub s instruction. So you can see this pattern, those instructions with which this S is written at the end. So these instructions actually update the N, Z, C, V flags. So N is negative, Z is 0, C is carry, and V is the overflow flag. तो आपने जो भी arithmetic operation perform किया, let's say this multiplication operation with the S, so then the processor will update the flags for you, and then you can look into the result as well as these flags to identify कि आपका result जो है वो किस तरह का आया है। And similarly the unsigned division, and then the AND operation, OR operation, and then the logic shift left operation, and then the move operation कि अगर आपने move भी कहीं पे किया तो then the flags can be affected. So most of the instructions update these negative, zero, carry, and overflow flags if S suffix is present. ठीक है? So this is how these instructions work. There are some instructions which update these flags even if no S is specified. For example, these compare instruction, CMP. So it compare like sub S, but without destination register, right? Similarly, the compare negative
it is like the add s but without destination register. ये भी कंपेयर कर रहा है. मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर जब भी कंपैरिजन करता है ऑफ टू नंबर्स, so it is actually the doing the subtraction operation, कि वो उन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करता है एंड देन सी द रिजल्ट, के हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आया है या नहीं आया. So that is what we are defining here, कि अगर आप सब ऑपरेशन सब इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, so there will be a destination register as well. Let's say हम इस तरह का लिखे sub s and then we write R3, R1 and R2. The same operation will be performed by the CMP, but उसको दो registers चाहिए, R1 and R2. ठीक है, दोनों इंस्ट्रक्शंस जो है वो सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर रहा है, बट इन दी सब एस you have a destination address, destination register as well, कि जो रिजल्ट आएगा वो R3 में जाके सेव होगा. बट यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुई, वी आर ओनली डूइंग इट फॉर कंपैरिजन, कि जो हमारा रिजल्ट है वो ज़ीरो आता है या नहीं आता. So then we just need to perform the subtraction operation, और उसका रिजल्ट हमें कहीं नहीं लेके जाना. उसका रिजल्ट जो है वो ALU के आउटपुट पे ही आ रहा है, और प्रोसेसर उसको देख लेगा कि ये ज़ीरो आया है या नहीं आया. ठीक है. So this is how these instructions work, and then we have the TST instruction as well. It is the test instruction. It is also like AND S, but without the destination register. AND operation अगर आप perform करते हैं, so then some of the flags will also be affected. कि अगर इसका result जो है ज़ीरो आ गया, तो then the zero flag will be affected. Similarly, the TEQ, it is the test equivalence. It is like the exclusive R or operation, but without the destination register. So आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेसर जो है वो दो इंस्ट्रक्शंस जिसका काम मुख्तलिफ है एक दूसरे से, बट दे कैन बी यूज्ड फॉर द सेम टास्क. तो इस तरह के हमारे पास कुछ जो प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, लाइक नॉट द कॉर्टेक्स M, उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये टेस्ट TST इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल हो, TEQ अवेलेबल हो. ये अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, लेट्स से दिस TEQ इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल इन एनी इंस्ट्रक्शन सेट. तो फिर हम क्या करेंगे कि हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो देन दिस एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विल टेल अस दैट दीज टू वैल्यूज आर इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ओके, सो दिस इज एग्जांपल जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सॉरी, कंपेयर में जब हम R1 और R2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में भी स्टोर हो, तब हम लिख सकते हैं RD यानी डेस्टिनेशन रजिस्टर साथ लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में. किस में? CMP में? जी. नहीं. देखो, ये तो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस है ना. प्रोसेसर ने आपको सिंटैक्स बताया है कि अगर आपने CMP यूज़ करना है तो मुझे आप बता रहे हो कि कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करो. अब कंपैरिजन करने के लिए मुझे दो रजिस्टर्स चाहिए, मुझे तीन नहीं चाहिए. ठीक है, ये CMP परफॉर्म ही इसी तरह काम करता है. अगर आप उसको R3 देंगे तो वो R3 will not be a valid instruction.
ठीक है। जी सर। तो इट इज रिटन बाय, इट इज गिवन बाय द प्रोसेसर। उसने हमें सिंटैक्स बता दिया है कि अगर आपको कंपैरिजन परफॉर्म करना है, तो अगर आप मुझे बता रहे हैं कि कंपैरिजन करो, तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर्स आगे दो, तो मैं उन दोनों रजिस्टर्स को कंपेयर करके आपको बता दूंगा दैट व्हाट इज दीज टू रजिस्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। अगर आपने ये रिजल्ट जो है वो तीसरे इंस्ट्रक्शंस में भी तीसरे रजिस्टर में सेव करना है, सो देन CMP इज नॉट यूजफुल फॉर यू अलोन। आपने कोई थर्ड इंस्ट्रक्शन यूज करना है और आप अपना रिजल्ट लेके जाएंगे टू स्टोर इट इन द यूर रिक्वायर्ड रजिस्टर। ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट कि अगर मैं आपको एक टास्क दूंगा कि दो वैल्यूज को ऐड करें, फिर उनका रिजल्ट जो है उसको कंपेयर करें, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसको R3 में स्टोर करें, अगर वो ज़ीरो है तो उसको R4 में स्टोर करें, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसको R9 में स्टोर करें। ठीक है। तो जब ये मैंने आपको सारी इंग्लिश में बता दी कि ये काम, ये काम करना है, तो अब आपके पास पूरा इंस्ट्रक्शन सेट जो है कोडेक्स M का अवेलेबल है। एंड देन ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे एक ही प्रोग्राम लिख के लाएं, आपका प्रोग्राम दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। कुछ CMP इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, कुछ सब S इंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे, कुछ दोनों को ऐड करके उसका रिजल्ट जो है ना वो दूसरे इंस्ट्रक्शन दूसरे रजिस्टर्स में सेव कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम उसको वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस लिख लेगा, एंड देन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। अदरवाइज अगर कोई CMP यूज करें तो उसको फिर वो मूव इंस्ट्रक्शन भी यूज करना पड़ेगा कि मूव के थ्रू जो रिजल्ट है वो हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर जिसमें हम चाह रहे हैं उसमें स्टोर हो जाए। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो लोड इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, एंड देन you can also look into that which one is the most efficient instruction to be used। मैं कम से कम instructions भी use करूं और efficiently वो job perform करूं। That is why sometimes it is said कि जो assembly है उस पे हमारा जो है कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, कि हम लिख सकते हैं कि प्रोसेसर जो टास्क है वो कैसे परफॉर्म करें। कि अगर हम कहें कि C = A+B परफॉर्म करना है, ठीक है, तो असेंबली में हमारे पास काफ़ी फ्रीडम है कि हम A को कहाँ स्टोर करें, फिर B को कहाँ स्टोर करें, और से फिर C को कैसे वो रिजल्ट C में लेके आए। हम लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस यूज़ करें या A B दो रजिस्टर्स में स्टोर करें, और जो ऐड है वो तीन जो रजिस्टर्स वाला इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करें। सो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम when we will be using assembly instruction। लेकिन अगर आपने C में ये लिख लिया, C में या Python में, so then it depends on the compiler कि compiler उस C लैंग्वेज को या उस Python लैंग्वेज को कौन कौन सी assembly instructions में convert करता है। ठीक है। so then that code may not be as efficient as the assembly code is। ठीक है। And assembly normally is dependent on the let me see। अगर हम assembly प्रोग्राम लिखें, लेट्स से ये है Cortex
M माइक्रो कंट्रोलर, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो है PIC माइक्रो कंट्रोलर। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लेट्स से आपको मैंने क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट जो है बता दिया इंग्लिश में कि आप दो नंबर्स को ऐड करें और तीसरे नंबर को उससे सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो है उसको 5 पे डिवाइड करें, और फिर वो जब आपके पास आ जाए तो उसको किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर लें। सो अब आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। यू हैव डिफरेंट वेज टू राइट दिस कोड। आप इसको असेंबली में लिख सकते हैं, और आप इसको सी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, असेंबली और सी में डिफरेंस मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, दैट द असेंबली इज द like the microcontroller dependent language, and then C is the high level language के जिसमें हमें माइक्रोकंट्रोलर का अगर पता ना भी हो तो then we can write the C program। अब असेंबली इंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे इंस्ट्रक्शन सेट बताओ कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन सेट। मैंने अगर दो वैल्यूज को ऐड करने हैं तो उसके लिए किस तरह का इंस्ट्रक्शन यूज करना है। सो दिस विल बी ऐड, लेट्स से R1 एंड R2। ठीक है, तो कोडेक्स M माइक्रो कंट्रोलर आपको बताता है कि आपने अगर दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो आप मुझे दो ही रजिस्टर दे सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि मैं R1 को एंड R2 को ऐड करूंगा और R1 में ही आपका रिजल्ट दोबारा से आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या करना है कि आई नीड टू डू के मैं ये काम परफॉर्म करूं कि R4 इक्वल टू R1 प्लस R2। The ultimate task is this one कि मैं R1 और R2 को ऐड करूं और रिजल्ट मुझे फिर R4 में चाहिए। ठीक है, तो अब कॉर्टेक्स M जो है, या लेट से चलो मैं पिक की एग्जांपल पहले ले लेता हूं कि पिक हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता ही नहीं है कि हम 3 रजिस्टर्स यूज करें। तो आपने जो एक इंस्ट्रक्शन लिखा वो ये लिखा कि ऐड R1 R2, और सेकेंड इंस्ट्रक्शन आप ये लिखेंगे कि मूव एंड मूव R4 एंड R1। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए दो इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ रहे हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको ले लें तो यहां पे हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसमें ये भी एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कि हम क्या करें कि ऐड R4 R1 R2। तो जो टास्क हमने परफॉर्म करना था वो एक ही इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म हो गया। ठीक है, सो नाउ इफ यू टेक दिस कोड, लेट्स से अगर आपने ये कोड ले लिया और आप इसको पिक पे रन करना चाहें तो उसको ये समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पिक के इंस्ट्रक्शन सेट में ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ही नहीं है। पिक को सिर्फ और सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन समझ आती है कि अगर आपने कोई भी दो नंबर्स को ऐड करने हो तो मुझे वो दो रजिस्टर्स बताओ, वो दो रजिस्टर्स से मैं आपकी वैल्यू लूंगा और जो फर्स्ट रजिस्टर है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो सेव कर लूंगा। एट द सेम टाइम जो मैंने आपको एक्युमुलेटर की एग्जांपल दी थी, लेट्स से हम यहाँ पे एक थर्ड
एग्जाम्पल भी ले लेते हैं विच इज द SAP1। ठीक है, SAP1 कंप्यूटर में भी अगर हमने ये टास्क परफॉर्म करना हो तो वहां पे क्या करेंगे कि यू नीड टू डू द ऐड R1 R2। तो वो क्या करेगा कि R1 और R2 को ऐड करेगा। एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट it has a special register that is known as the accumulator। अब जो रिजल्ट है दैट इज स्टोर्ड इन द accumulator। उसने दो रजिस्टर्स ऐड तो कर लिए लेकिन रिजल्ट accumulator में ले गया, लेकिन मुझे तो R4 में चाहिए। ठीक है, तो आई नीड टू राइट another instruction as well, that is move R4 and accumulator। तो वो क्या करेगा कि accumulator से रिजल्ट लेके R4 में स्टोर कर लेगा। तो नाउ यू कैन कंपेयर दैट दिस इज द वन इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन सेट को हमने देखा कि अगर मुझे पिक के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो फिर मुझे इस टास्क के लिए ये दो इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सी में लेकिन अगर मुझे कॉर्टेक्स एम पे यही टास्क परफॉर्म करना है तो देन फॉर कॉर्टेक्स एम आई नीड टू राइट दिस वन इंस्ट्रक्शन और मेरा काम हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मुझे SAP1 के लिए असेंबली इंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो आई नीड टू राइट दीज टू इंस्ट्रक्शंस। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इन असेंबली यू नीड टू डू। अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है जो ब्लू कलर में है दैट इज फॉर पिक, अगर आप इसको कॉर्टेक्स एम पे रन करना चाहें तो दिस विल नॉट वर्क। ओके, क्यों? कोई बता सकता है रीजन? आउन आप बताएं। ये जो असेंबली कोड हमने लिखा है, अगर मैं इसको कॉर्टेक्स एम पे रन करना चाहूँ, ये जो ब्लू बॉक्स में मैंने दो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ऐड R1 R2 एंड मूव R4 R1, ये अगर मैं कॉर्टेक्स एम पे रन करना चाहूँ तो वो उसको समझ नहीं आएगी। वाई? सर वो आर्किटेक्चर डिफरेंट है, उसको वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं आएंगी, उसका आईएस से डिफरेंट है, ये रीजन हो सकता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट में ये वाले इंस्ट्रक्शंस है ही नहीं। अगर आप उसका कोडेक्स एम का इंस्ट्रक्शन सेट देख लें उसमें ये मूव R4 R1 है ही नहीं। लेट्स एज्यूम, शायद हो बट आई एम एज्यूमिंग हियर के जो पिक के जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें आपने ऐसे काम करना है, लेकिन कोर्टेक्स एम हमें बता रहा है अगर आपने ये काम परफॉर्म करना है तो यू नीड टू प्रोवाइड मी 3 रजिस्टर्स। उसका जो फर्स्ट रजिस्टर है मैं उसको डेस्टिनेशन रजिस्टर मानूंगा और जो बाकी दो रजिस्टर्स है उसको मैं ऐड करके आपको वैल्यू उसमें स्टोर कर दूंगा। अब बारी आती है, ये तो असेंबली के हमने देख लिया कि असेंबली इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे प्रोसेसर्स पे रन नहीं होंगे क्योंकि उसको वो चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, वो इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आएंगे। बट व्हेन वी राइट सी कोड तो सी में हम ये लिखेंगे कि लेट्स से z इक्वल टू x एंड y। हमने दो वैल्यूज यहां पे स्टोर की, एक वैल्यू जो है वो y में स्टोर्ड है, दूसरी वैल्यू जो है वो x में स्टोर्ड है, और इनका जो रिजल्ट है दैट इज स्टोर्ड इन z। ठीक है, तो x एंड y जो है आपके
सोर्स रजिस्टर्स हो गए और Z जो है दैट विल बी यूर डेस्टिनेशन रजिस्टर। अब हमने C प्रोग्राम तो लिख लिया। अब अगर आपको इसको कोर्टेक्स M पे रन करना है तो यू विल नीड कंपाइलर। ठीक है, सो कंपाइलर विल कन्वर्ट दिस C कोड टू असेंबली। ठीक है, तो कोर्टेक्स M के लिए कंपाइलर डिफरेंट होगा, पिक के लिए कंपाइलर डिफरेंट होगा, सेप 1 के लिए कंपाइलर डिफरेंट होगा। इसीलिए सी लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज में अगर आपने कोड लिखा हुआ है तो यू हैव टू इंस्टॉल और यू हैव टू रन द करस्पॉन्डिंग कंपाइलर। के आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि मैं ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे रन करूँगा। सो देन यू कैन रन द कंपाइलर, और वो कंपाइलर को ऑलरेडी आपके असेंबली इंस्ट्रक्शंस का पता है। लेट्स से अगर हम पिक कंपाइलर उठाएं तो उसको पता है कि पिक पे कौन कौन सी असेंबली इंस्ट्रक्शंस रन होंगी, तो वो देखता है कि अच्छा 2 रजिस्टर्स को ऐड करने हैं और एक तीसरे रजिस्टर में उसको सेव करना है। तो कंपाइलर क्या करेगा कि 2 वैल्यूज़ को के लिए एक ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेगा, फिर अगर उसके पास लोड इंस्ट्रक्शन है या मूव इंस्ट्रक्शन है वो उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये 3rd रजिस्टर में वो रिजल्ट को स्टोर कर लेगा। सो दैट इज हाउ द सी एंड असेंबली इज डिफरेंट देन ईच अदर। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ये बीच में आ गया था, that so that you can understand that what is the purpose of a compiler। वैसे कंपाइलर पे हमने पहले भी बात की हुई है, बट हियर you need to understand it more clearly कि हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों प्रोग्राम लिखते हैं। अब आपने जेनरिक सी प्रोग्राम लिख लिया, अब अगर आपने उसको पिक पे चलाना है या सैप पे चलाना है, you can run it। All right, so that's the the difference between the add and add s। हमने इसको देखा that there are certain instructions के जो negative, 0, carry and ओवरफ्लो फ्लैग्स इसको चेंज करते हैं। इसको हम काफ़ी लेक्चर्स से आके पढ़ रहे हैं that it has different applications, so we want to understand that how these assembly instructions change these flags। तो यहाँ पे add हमने already explain कर लिया, but in this slide it is a little bit in more detail के जो अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट हमारे से रह गया that these are the 3 names के application program status register, then the interrupt program status register and the execution program status register। जो processor है codex M वो इसको as a one register ही treat करता है by the name PSR program status register। In some cases, it is also called as the XPSR। ठीक है, तो ये नाम अगर आपको नज़र आए तो then it means we are utilizing some of the parts of the program status register। Okay, ये भी हमने देख लिया। and then so these are the bits, so negative flag जो है अगर 31st bit जो है that is 1, so then the result will show the negative flag। then the 0
अगर आपका जो रिजल्ट है that is 0, so 0 flag will be 1. Carry, so assume that R1 and R2 are representing unsigned numbers. यहाँ पे ये assumption word is very important कि अगर आपने ये जो इंस्ट्रक्शन है यूज किया है add S R3 R1 and R2, तो the processor does not know कि आपने R1 और R2 में जो नंबर स्टोर किया हुआ है that is unsigned or signed. Processor itself does not know कि ये क्या आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं because the number, both these numbers, they are in binary. तो बाइनरी में the processor only understand ones and zeros. ये प्रोग्रामर की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा कि जो उसने स्टोर किया हुआ है वो इसको -3 कंसिडर कर रहा है या उसको +8 कंसिडर कर रहा है, जो भी उसकी इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू है। आपको मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हुए थे कि अगर आप 8 बिट रजिस्टर है उसमें अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट स्टोर करें, 2's कॉम्प्लीमेंट कोई नंबर, और अगर आप उसको नॉर्मल बाइनरी फॉर्म में भी देख लें तो इट विल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट नंबर। तो वो दो नंबर्स आपने जो प्रोग्रामर है उसके जहन में है that what I'm storing over here and what do I mean by these values. So that is why यहाँ पे जो explanation है उसमें assume लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐड ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो द प्रोसेसर assume कि ये दोनों नंबर जो है वो अनसाइंड इंटीजर्स हैं, तो इसलिए वो उसको अपडेट करता है कैरी फ्लैग। और एट द सेम टाइम इट एज्यूम्स कि अगर ये दोनों नंबर्स जो है वो साइंड इंटीजर्स हैं और फिर वो ओवरफ्लो उसमें अकर हो रहा है तो देन दिस फ्लैग विल बी सेट। अच्छा, दिस इज द कील माइक्रोविजन। आपने KIEL है या EIL है? Let me see. KEIL. Keel माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों ने लैब में यूज किया है, राइट? यस सर, हम ये लैब में यूज कर रहे हैं। Okay, very good. STM32 क्यूब भी यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, क्यूब MX, राइट? और आपने इस तरह का कोई सेटअप देखा है जो अभी मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि वो उसमें रजिस्टर्स हो, उसके वैल्यूज हो? सर हमने कील में वो सी लैंग्वेज में किया है, ये हम्म, असेंबली में नहीं किया। ठीक है, ओके, वो कोई बात नहीं। ये मैंने डॉक्टर ताहिर से रिक्वेस्ट की है कि वो आपको असेंबली में भी कोई एक आध लैब करा ले। तो लेट्स सी वो उसको आगे करेंगे, अदरवाइज फिर हम मैं भी इसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दूंगा दैट हाउ वी एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज। और चूंकि आप काफ़ी दिनों से
लैब में कील यूज़ कर ही रहे हैं, तो फ्रॉम दिस स्क्रीन यू ऑल कैन ट्राई कि हम कोई भी असेंबली प्रोग्राम कील में किस तरह से लिखते हैं। तो देन यू कैन ट्राई कि यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द असेंबली कोड। और ये अगर आप बुक में देख लें तो बुक में भी आपको गिवन होगा। तो लेट्स से दीज आर आवर मेन इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लिखना चाह रहे हैं, which is the load register are not with this immediate value। और फिर हम दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं which is LDR R1, और फिर हम उसमें ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एंड देन वी ऐड, और साथ में ये S भी आप नोट करें। दिस S टेल्स अस, या हम जो है ना प्रोसेसर को बताना चाह रहे हैं कि ठीक है एडिशन भी परफॉर्म करें, बट आई नीड यू टू मॉडिफाई द फ्लैग्स एज वेल, कि अगर इस एडिशन ऑपरेशन से कुछ फ्लैग्स मॉडिफाई हो रहे हो तो देन यू नीड टू अपडेट द फ्लैग्स एज वेल। तो आप देखेंगे कि जब हम ये इंस्ट्रक्शंस रन कर रहे होंगे तो देन द फ्लैग्स विल बी डिफरेंट, लेकिन जब आप ये लास्ट इंस्ट्रक्शन रन करेंगे तो देन उसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से के एडिशन से, तो R3 विल ऑल्सो बी R3 में उसको सेव किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट the flags will also be affected। For example, हम यहाँ पे इसको देख लें। लेट्स से आपने इन दो नंबर्स को ऐड किया, सो द रिजल्ट इज 0। ठीक है, तो नेगेटिव फ्लैग को आप देखें। नेगेटिव फ्लैग हमने पढ़ा था कि जब भी आपका 32 बिट में से 31 एंड 0, इन 32 बिट्स में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अगर 1 हुआ तो फिर हमारा जो नेगेटिव फ्लैग है दैट विल बी सेट। लेकिन हमारे सिनारियो में ऐसा नहीं है, सो दैट इज व्हाई द नेगेटिव फ्लैग इज 0 और उसको सेट नहीं किया गया। ठीक है, एट द सेम टाइम 0 फ्लैग को आप देखें, 0 फ्लैग इज सेट। इट मीन्स के जो रिजल्ट हमारे पास आया है दैट इज 0, तो 0 फ्लैग को इसलिए सेट किया गया। कैरी फ्लैग इज ऑल्सो 1, ये क्यों? कोई बता सकता है? अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पे एक कैरी आया हुआ है, बिकॉज दिस इज द इस नंबर का जो रिजल्ट है दैट इज मोर देन 32 बिट्स। ये टोटल 33 बिट्स हैं, दैट इज 1 0 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, सो जो लास्ट 1 है दैट इज एक्चुअली गॉन इनटू द कैरी फ्लैग, और इट इंडिकेट्स अस जो कि हमारा रिजल्ट आया है that is more than the destination register's value। ओके, सो फ्रॉम दिस स्लाइड आई वांट टू शो यू के हम कील में ये लिख सकते हैं। सो दिस विल गिव यू some more insight into that how the assembly instructions modify the program status register। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है PSR, that is the program status register, और इसमें ये different kind of flags हैं कि जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रन करेंगे तो देन यू कैन सी के प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर की वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहेंगी। एट द सेम टाइम यू कैन ऑब्जर्व ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स एज वेल के रजिस्टर्स की वैल्यूज़ क्या है। इसी तरह जब आप इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन इसको रन करेंगे
तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एज वेल के प्रोग्राम काउंटर हमारे पास इंक्रीमेंट होगा आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन। तो आप उसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा गौर से देखें कि अब जो है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है। मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, और हमारे बाकी रजिस्टर्स जो है वो कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देखें कि हमने जब ये इंस्ट्रक्शन रन किया द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो इसने क्या किया कि R0 में हमने FFF को स्टोर कर दिया। सिमिलरली जब हम ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं तो वो R1 में 1 स्टोर कर लेता है। ठीक है, बाकी जो रजिस्टर्स हैं उसमें सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 0। और इसी तरह जो R3 है, R3 में हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा, चूंकि वो 0 है, so that is why we cannot distinguish it from the default value। लेकिन अगर इसका रिज़ल्ट कुछ और होता तो you would have seen कि R3 में हमारा रिज़ल्ट होता। so you can practice on this one कि कील में हम किस तरह से ये इंस्ट्रक्शन सारे रन करते हैं। if you see any problem then we can look into it। All right, how do we do the 64-bit addition using the 32-bit registers? तो हमने देखा that this Cortex M processor can only do the 32-bit addition। तो हम क्या करेंगे that we can use the same instructions to perform 64-bit additions as well, कि हम उसको दो chunks में उसको divide करें और फिर कैरी को भी कंसिडर करें। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने बताए थे दैट ऐड C। ठीक है, तो फर्स्ट जो एडिशन है इसके लिए आप सिंपल ऐड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये सेकंड आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 32 बिट्स आएंगे उसके लिए आपने फिर ये इंस्ट्रक्शन यूज करना है दैट इज द ऐड विद कैरी। तो अगर फर्स्ट पार्ट से हमारे पास कोई कैरी आएगा तो वो ये सेकंड पार्ट ऑफ द एडिशन में उसको यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, दैट इज हाउ वी लुक इनटू इट के लेट्स से हमने ये दो नंबर्स को ऐड करना है दैट इज C इज इक्वल टू A प्लस B, और दो जो 64 बिट इंटीजर्स हैं दैट इज स्टोर्ड लाइक दिस के A को हमने ब्रेक किया R1 और R0 में स्टोर किया लाइक दिस इज एक्चुअली A, और जो R3 एंड R2 है उसमें हमने स्टोर कर लिया B को। एंड हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो C में स्टोर हो, तो रिज़ल्ट जो है वो भी 64 बिट्स का है। तो but our processor can only perform 32-bit operations। तो हमने प्रोग्राम लिखना है ताकि हम दो 64 बिट नंबर्स को ऐड कर सके। अब हमने ये एजम्पशंस की कि जो हमारा रिज़ल्ट है 64 बिट का दैट विल बी स्टोर्ड इन दी R5 एंड R4। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं दैट A इज दिस नंबर एंड B इज दिस नंबर। ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड करना है दैट दीज आर द 4 चंक्स।
अब ये जो वैल्यू है that will come in R0 और ये जो वैल्यू है that will come in R2. Similarly, this value will come in R1 and similarly this number will come in R3 और इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों का तो the result are stored in R5 and R4 तो वो 32 बिट्स कंबाइन होके हमें 64 बिट का रिजल्ट देगा। अच्छा, ये जो R1, R2, R3, R0, R4, R5 है ये हमने एज्यूम किए हैं। यू कैन यूज अदर रजिस्टर्स एज वेल। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हम दो 64 बिट नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो भी 64 बिट का होगा। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड के हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी विल ऐड द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में द चेंज इज कि हमने कैरी को भी कंसिडर करना है क्योंकि पिछले पार्ट से हमारे पास कैरी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कैरी आए। दिस कुड बी, ये नंबर जो है ये स्मॉलर नंबर भी हो सकता है। लेट्स से दिस इज अ नंबर 0 0 0 and something, let's say EF और जो सेकंड नंबर है दैट इज द सेम 1। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर कैरी आपके पास यहाँ नहीं आएगा सेकंड में। बट एट द सेम टाइम चूंकि हम जेनेरिक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वी नीड टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन ताकि हमारा अगर पहले पार्ट से कैरी आ रहा है तो वो कंसिडर हो और सेकंड पार्ट में उसको ऐड किया जाए ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक करेक्ट आ सके। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी डू दैट एड एस हमने परफॉर्म किया। एस हमने इसलिए किया, कोई बता सकता है व्हाई वी हैव यूज्ड द एस ओवर हियर? अभी आज हमने पढ़ा है ये। सर हमने ये एस इसलिए यूज किया है ताकि ये NZCR जो फ्लैग्स हैं वो अपडेट हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। हम इस इंस्ट्रक्शन से कैरी फ्लैग को अपडेट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने एस यूज़ किया ताकि वो जो फ्लैग्स हैं वो अपडेट हों। अगर हम एस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो देन अगर हमारे पास कैरी आ रहा भी हुआ तो प्रोसेसर विल नॉट अपडेट दैट कैरी फ्लैग क्योंकि हमने उसको उस तरह से इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं है। Because the carry is important for us, that's why we use the instruction add s, so that the carry will be updated if the result is satisfying those conditions for the carry bit. Then the second instruction will be the add c ताकि हमारे previous जो step है उससे carry को consider कर लिया जाए। तो you can see कि यहाँ पे addition में हमारे पास कैरी को भी कंसिडर किया गया और चूंकि हमने R4 और R5 को यहाँ पे यूज़ किया तो R4 इज़ द डेस्टिनेशन रजिस्टर फॉर द फर्स्ट पार्ट और R5 जो है दैट इज़ द डेस्टिनेशन रजिस्टर फॉर द सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से हम 64 बिट एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन लर्न one more takeaway as के ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 32 बिट प्रोसेसर्स ही अवेलेबल हो। जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है या जो सेप 1 है, दोज आर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपने फिर 16 बिट कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी हो या आपने 32 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो, so that is how the process will be done. But you can see के अगर हमारे पास 64 बिट प्रोसेसर नहीं है
तो then we have to use these many instructions, like these two instructions to perform the 64-bit operations. अब at the same time अगर हमारे पास 64-bit प्रोसेसर होता कि उसके जो रजिस्टर्स है वो भी 64-bit होते और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो भी 64-bit को देख सकता था, and then it can utilize those 64 bits for on in the computations on the ALU as well. So then we do not need to use these kind of two instructions. हम सिर्फ और सिर्फ add instruction use करते, add, और हम लिखते कि R5 and R2 या R1, तो ये R1 भी 64 बिट का है, R2 भी 64 बिट का है, और रिजल्ट जो है वो हमारा R5 में आ गया। तो हमने परफॉर्म किया C इक्वल टू A प्लस B। तो ये A, B एंड C ये सारे के सारे जो हैं ये 64 बिट होंगे if the processor is 64 bit। ये सारा का सारा प्रोसेस हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा जो Cortex M4 है that is of 32 bit। ठीक है, Cortex M4 microcontroller जो है that has the registers in the form of 32 bits and जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो भी 32 बिट्स का है, इसी तरह प्रोग्राम काउंटर भी 32 बिट्स का है। सो दैट इज़ हाउ नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा प्रोसेसर जो है वो लेस बिट्स को सपोर्ट करता है, सो हाउ वी डू दी लार्जर साइज कंप्यूटेशंस ऑन दैट प्रोसेसर। ओके, 64 बिट सब्ट्रैक्शन, द सेम प्रोसेस, हम अब सिर्फ सब्ट्रैक्शन। I have a question. Yep. सर लार्जर कंप्यूटेशन से मतलब ये कि जो कैरीज के साथ आ रहे हैं, जो मतलब एक उसकी कंडीशन में आए थे कि वो बिट सक्सीड कर जाते हैं और कैरीज आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो उस आप उस मद के अंदर या उस जिमरे में कह रहे हैं कि ये लार्जर कंप्यूटेशन के लिए हमें यूज करना पड़ रहा है इस वे को, इस प्रोसीजर को, ये लाइक 64 बिट ALU है और इस तरह करके आप बता रहे हैं। जब लार्जर कंप्यूटेशन का आपने बात किया तो मैं उसको स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि वो किस मद में बात कर रहे हैं आप। दोबारा बताओ। सर आपने लार्जर कंप्यूटेशन की बात की है ना, कि लार्जर कंप्यूटेशन जब करनी हो तो फिर हम इस प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं। अगर हमारा प्रोसेसर अगर 32 बिट का है तो 64 बिट ALU यूज हो रहा है या 64 बिट के हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो करवा रहे हैं, तो फिर जो है फिर इस प्रोसीजर से हमें करना पड़ता है। जो अभी ये सारा हम देख रहे हैं एडएस की इंस्ट्रक्शंस से ADC और कैरीज के जो आपका बिट्स एक्सीड कर जाती हैं, तो ये लार्जर कंप्यूटेशन इस जिम्रे में बात हो रही है ना सर, यानी कि बात समझ ही गए होंगे, आई थिंक सो। नहीं, सर सर दोबारा फिर आप समझाओ। सर सवाल मैं समझाओ, आपसे तुम सवाल समझाओ, आपके सवाल में ही जवाब है, बट आप पहले अपना सवाल क्लियर करो तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपके सवाल में जवाब कहाँ है। दोबारा बताओ। सर आपने कहा ना कि 32 बिट्स की जो है हमारे पास प्रोसेसर है, हम्म, तो उसके बाद जब आप 64 बिट की इंस्ट्रक्शंस जो हम उसको दे रहे हैं तो वो एक लार्जर है ही नहीं, कंप्यूटेशंस। है ही नहीं, है ही नहीं। 64 बिट इंस्ट्रक्शंस तो है ही नहीं, वो तो मैंने एज्यूम किया, आपको बताया कि अगर 64 बिट प्रोसेसर हमारे पास होता तो हमें ये सारा कुछ ना करना पड़ता। अच्छा, ना करना पड़ता। एग्जैक्टली, अ, हाँ। ठीक हो गया। फिर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लो प्रोसेसर है, उसकी बिट्स कम है और इस वजह से हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ना है, कैरीज एंड ऑल दैट, ये इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ यस, रही हैं। यस, यस, ठीक है, ठीक। यस। थैंक यू।
वो अगर को आपने मिस किया, जो मैंने ये जो ये मैंने एंड पे यहाँ पे लिखा है ना, ये कि अगर हमारे पास 64 बिट का प्रोसेसर होता तो हम सीधा सीधा एक ही इंस्ट्रक्शन लिख लेते। हमारा जो ए है वो भी 64 बिट का है, बी है वो भी 64 बिट का है, और रिजल्ट जो है वो भी 64 बिट का आएगा। लेकिन चूंकि हमारा प्रोसेसर 32 बिट का है तो हमें 64 बिट कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब आप इसको 128 पे भी ले जाए तो 128 के लिए आपको फिर उसको और डिवाइड करना पड़ेगा, शायद 6 या 8 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़े कि ये दोनों को ऐड करो, फिर ये दोनों को ऐड करो, फिर ये दोनों को ऐड करो, और उनकी कैरीज को भी कंसिडर करते जाओ। ठीक है, समझ आ गई है? यस सर, अच्छी तरह सही सही समझ आ गई सर, थैंक यू थैंक ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह आपको बीच में अगर कहीं पे देखो, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जस्ट चूंकि आपने वो अगर को मिस किया तो देन सारी की सारी डिस्कशन जो है ना वो मिक्सअप हो जाती है। तो जैसे ही आपको कुछ लगे कि हाँ मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड हम उसी जगह पे उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। ठीक है? यू सर, फॉर श्योर, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे भी जो मैंने डिस्कशन की ना कि ये 8 बिट का अगर प्रोसेसर है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली 16 बिट की कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो सिर्फ 8 बिट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं और वो है 16 बिट के या वो है 32 बिट के, तो आपको अपना प्रोग्राम इस तरह से लिखना पड़ेगा कि आप उन 32 बिट्स को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि पहले ये 8 बिट ऐड होंगे, फिर ये 8 बिट ऐड होंगे, फिर ये 8 बिट ऐड होंगे, फिर लास्ट वाले 8 बिट ऐड होंगे, और हर पार्ट का जो कैरी है वो नेक्स्ट में कंसिडर होगा, तो हमारे पास रिजल्ट ठीक आएगा। ओके, सो इसको थोड़ा सा यस डाइजेस्ट करें, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। Alright, so then we move onwards. ये एडिशन का मैंने आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। You can look into this subtraction एग्जाम्पल एज वेल कि हमें हमारे पास अगर 64 बिट के दो वैल्यूज़ हैं और हम इसको 32 बिट प्रोसेसर पे रन करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, 32 बिट प्रोसेसर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो हम जिस प्रोसेसर को स्टडी कर रहे हैं कॉर्टेक्स एम, वो है 32 बिट का। तो अगर किसी जगह पे हमें 64 बिट या 128 बिट दो वैल्यूज़ को ऐड करनी पड़ जाए तो हम फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसीजर के उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर उस चंक्स को ऐड करके उसकी कैरी को नेक्स्ट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस फिगर से आपको वो समझ आ जानी चाहिए। Now we move on to the multiplication and division as well. This is the signed multiply. अगर आप simple MUL देते हैं प्रोसेसर को, so then the processor will consider it as the signed multiplication, जो R6 में हमारे पास स्टोर होंगी। So it will multiply R4 and R2, और result जो है that will be stored in the R6. Similarly, जो unsigned multiply है उसके लिए different instruction है कि अगर आपकी values unsigned है तो वो उसको फिर 2's complement में consider नहीं करता, और जो flags हैं वो भी उसी तरह से update होंगी। अच्छा, मल्टीप्लाई विद एक्युमुलेशन मींस के अगर हमने परफॉर्म करना है कि लेट्स से हमारे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो और आर नॉट में उसका जो रिज़ल्ट है वो सेव हो और फिर उसको R6 में स्टोर किया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के जिसके लिए आप सिनारियो पर
सोच सकते हैं कि लेट्स से जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी कि आई हैव गिवन यू सम स्टेटमेंट, वो शायद ख़त्म हो गया, कि हम आपको एक स्टेटमेंट दे के इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर R0 में उसको स्टोर करें, फिर R3 के साथ इसको डिवाइड करें एंड R6 में फिर रिजल्ट को ले आए। तो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है उसने आपको कुछ कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए कि जो आपके 3-4 स्टेप्स के काम एक ही इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यही काम आप जो है बाकी इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं। लेट्स से आप इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट यही टास्क परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिर ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी नहीं होगी, इसके साथ आपको कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करनी पड़ेगी, सो देन दैट टास्क विल बी फिनिश्ड। एट द सेम टाइम ये भी एक इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई विद सब्ट्रैक्ट, के इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको R0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन R6। Okay, long multiplication, again the result will be 64 bits, क्योंकि हम जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं R1 एंड R2 को, तो द रिजल्ट कैन बी 64 बिट्स। ठीक है, तो वो 64 बिट्स जो हैं दैट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। तो वो 64 बिट्स के लिए आप वो एक रजिस्टर में थोड़ी आएंगे, उसके लिए आपको दो रजिस्टर्स चाहिए होंगे, दैट विल बी, उसको नाम दिए गए हैं, दैट इज RM एंड RN। ठीक है, तो that will be RM and RN most significant, and नहीं, not most significant, लेकिन M और N इसको नाम दिए गए हैं, and then the result will be stored in these registers, that is the RD destination register, high bits, and similarly destination register low bits। ठीक है, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगे वो इस एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो दूसरे रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। तो यू कैन सी दिस एग्जांपल के यहाँ पे हम इसको दो रजिस्टर्स स्पेसिफाई करते हैं, सो दीज टू रजिस्टर्स आर द डेस्टिनेशन रजिस्टर्स, और जो R0 एंड R1 है दीज आर दी सोर्स रजिस्टर्स। तो आप R1 और R0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट इज एक्चुअली 64 बिट्स। तो वो 64 बिट्स जो है वो एक रजिस्टर में सेव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने इसको दो रजिस्टर्स दे दिए कि आप जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उसको एक रजिस्टर में स्टोर करें और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उसको दूसरे रजिस्टर में स्टोर करें। ठीक है, ये उसकी कुछ वेरिएशंस हैं कि आप साइंड और अनसाइंड नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ओके, बिटवाइज लॉजिक, ये हमने पहले भी इस पे बात की थी कि बिटवाइज एंडिंग ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होती है। तो then you have two registers, let's say this is RN, change color. This is the source register R1, and the second one is the operand 2, दूसरा हमारे पास कोई वैल्यू होगी, और and then we store the result into the destination register. Similarly, these are all the logical instructions, bitwise logic OR operation, then exclusive OR operation, bitwise logic not OR, जिसको आप NOR भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली द क्लियर ऑपरेशन, के अगर आपने किसी रजिस्टर को
क्लियर करना है, सो देन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी यूज्ड। बिट फील्ड क्लियर के हमने पूरे रजिस्टर को क्लियर नहीं करना, हम किसी एक पार्ट को क्लियर करना चाहते हैं। बाय क्लियर वी मींस 0। मैंने आपको अभी आज एग्जांपल दी थी दैट बाय सेट वी मींस 1 एंड बाय रीसेट वी मीन 0। तो रीसेट को कभी कभी क्लियर भी कहा जाता है। ठीक है, कि अगर कोई आपको कहे कि इस रजिस्टर को क्लियर करो, इट मींस वो चाह रहा है दैट यू स्टोर जीरोस इन इट। बिट फील्ड इंसर्ट के हम किसी एक स्पेसिफिक बिट्स पे कुछ वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ बिट्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट विल बी यूज्ड। ठीक है, मूव नॉट लॉजिकली नेगेट ऑल बिट्स के वो इन वैल्यूज को सबको नॉट कर देगा एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। अच्छा, हम अब ये एग्जांपल हमने आई थिंक पहले भी देखी थी, बट यहाँ पे आप इसको देखें दैट बिट वाइज लॉजिक एंडिंग जो है दैट इज परफॉर्म्ड बिट वाइज के 1 एंड 1 जो है उसका जो रिजल्ट है दैट विल बी 1। सिमिलरली अगर आप इन 1 एंड 0 को एंड करें सो देन द रिजल्ट इज 0। अगर आप इसको देखें 0 एंड 1 को, इसका भी रिजल्ट जो है दैट इज 0। सिमिलरली अगर आप इस 1 एंड 1 को देखें तो द रिजल्ट इज 1। तो ये अगर आपको डीएलडी सारी याद है तो देन इट मींस 1 एंड 1 अगर आप इसको देंगे तो द रिजल्ट विल बी 1। सिमिलरली अगर आप इसको 0 एंड 1 देंगे तो द रिजल्ट इज 0। ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो दैट इज बिट वाइज एंडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वाई ये बिट वाइज लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिट वाइज लॉजिक ऑपरेशन किस तरह से प्रोसेसर परफॉर्म करता है। सिमिलरली बिट वाइज और एज वेल। अब हम देखते हैं बिट क्लियर के बिट क्लियर हाउ इज इट परफॉर्म्ड के R2 लेट्स से R1 एंड R0 जो है इज लाइक दिस के नॉट को आपने R1 जो है दैट इज नेगेटेड। R1 में जो भी वैल्यू है, लेट्स से दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। ठीक है, इसको इन्वर्ट कर लो, सारे जो बिट्स हैं उसको इन्वर्ट कर लो, दैट इज 0 0 0 एंड देन 1 1 1। रिमेंबर हम बात कर रहे हैं बिट वाइज। ठीक है, आगे इसका एक और टाइप आएगा दैट विल बी डिफरेंट देन दी बिट वाइज। तो अब फिर हम उसको देखेंगे दैट हाउ डिफरेंट इज द अदर लॉजिक ऑपरेशन। अच्छा, स्टेप 2 में ये क्या करता है दैट दिस R1 इज ऑल्सो नेगेटेड एंड देन दीज 2 जो कि रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट विल बी स्टोर्ड इन दी R2 और उसके दरमियान जो ऑपरेशन है दैट इज दी एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो अब लेट आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन आ गई बिट क्लियर। तो ये आपने एक ही इंस्ट्रक्शन से प्रोसेसर ने सारी बात आपकी समझ ली, बट लेट्स से ये बिट क्लियर हमारे पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन हमने ये काम परफॉर्म करना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी विल डू द नॉट इंस्ट्रक्शन के पहले आप नॉट R1 करें। नॉट के लिए इंस्ट्रक्शन कौन से यूज होते हैं, लेट्स से दिस वन। नेगेट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हमने आई थिंक पढ़ी थी कि आप लॉजिक नॉट परफॉर्म करेंगे एंड देन यू विल एंड इट विद
दी आर नॉट। तो आपको फिर वही टास्क परफॉर्म करने के लिए दो इंस्ट्रक्शंस यूज करने पड़े। एट द सेम टाइम लेट्स से आपको रिजल्ट जो है वो R2 में सेव करना है, तो देन यू विल यूज द मूव इंस्ट्रक्शन टू लोड इट इनटू R2। बट प्रोसेसर ने चूंकि आपको एक ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो इट हैज़ मेड योर लाइफ ईजियर कि आप यही इंस्ट्रक्शन यूज करें, सारा का सारा काम आपका एक ही इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, बिट फील्ड क्लियर के जैसे मैंने आपको कहा कि हम किसी फील्ड को क्लियर करना चाहते हैं, हमारे पास 32 बिट का रजिस्टर है और हम उसमें किसी एक पार्ट को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल लेट्स से BFC यूज किया गया है। सो एज्यूम दिस रजिस्टर जो कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज R4 और इसके जो बिट्स हैं दैट इज लाइक दिस 0 1 2 एंड अप टू, यहाँ पे क्या लिखूं? एनीवन? सर यहाँ पे 01 31 आएगा 31, एंड वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो रजिस्टर है ये 32 बिट का है, तो हमने उसके बिट्स को नेमिंग दे दी कि ये 0 1 2 3 4 5, तो इसका जो लास्ट बिट होगा दैट विल बी 32 बिट। अब हम इस इंस्ट्रक्शन से क्या करना चाह रहे हैं कि ये क्लियर बिट 8 to 19, ये 8 इज द स्टार्टिंग बिट, यहाँ पे जो 8th बिट है दैट इज द स्टार्टिंग बिट, ये हमने इससे इसको स्टार्टिंग बिट बता दिया और फिर टोटल नंबर ऑफ बिट्स बता दी कि यहाँ से 12 बिट्स को काउंट करो, तो ये होगा 9 10 11 12 और फिर अप टू 19। तो ये टोटल हमारे पास जो बिट्स आ गए दीज आर 12 बिट्स। ठीक है, तो हम इन सारे के सारे 12 बिट्स को जीरो करना चाह रहे हैं यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड बिट फील्ड क्लियर। ये पूरे के पूरे रजिस्टर को क्लियर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को क्लियर कर रहा है जो हमने इसको स्पेसिफाई किया। ठीक है, सिमिलरली we can insert some value in a specific location as well using this bit field insert। बिट फील्ड इंसर्ट के थ्रू हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस BFI इट रिप्लेसेस बिट 8 to 19 जो कि फिर अगेन 12 बिट्स है ऑफ R9। इस R9 का दिस इज द destination register, this is the destination, or R2 from R2 is the source register। तो R2 के जो 12 बिट्स हैं वो उठा के R9 में स्टोर कर लिए। ठीक है, तो R9 के चूंकि हमने आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते इस इंस्ट्रक्शन में, तो वो 0 to 11 बिट्स में उसको स्टोर कर लेता है, यहाँ से उसको चंक उठा के R9 में उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, R2 के स्टार्ट वाले बिट्स को उठा के उसको हमने जो फील्ड स्पेसिफाई किए हैं उसमें वो वैल्यू को इंसर्ट कर लेता है। सो दैट इज व्हाट द बिट फील्ड इंसर्ट इज यूज्ड। ठीक है, इस पे आप और कुछ एग्जांपल्स रन करके ट्राई करें एंड देन यू कैन रन इट इन द कील एज वेल। और पहले उसको पेपर पे करें कि अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन रन करूं तो मेरे पास R9 में क्या वैल्यू आनी चाहिए, एंड देन यू कैन रन इट इन द कील माइक्रोविजन और फिर देखें कि आपने आंसर सही से निकाला है या नहीं निकाला। ऑलराइट, देन दीज आर द ऑपरेशंस। अब मैं आपको पिछले कुछ स्लाइड्स पे बताना चाह रहा था कि बिट वाइज एंडिंग एंड बिट वाइज और
and bitwise not. तो the bitwise लॉजिक ऑपरेशन को हमने देख लिया कि बिट वाइज वो कैसे परफॉर्म करेगा, कि हम एक एक बिट को देखेंगे और उसकी लॉजिकल ऑपरेशन उस पे अप्लाई करेंगे। अब एक और टाइप ऑफ द ऑपरेशन है, दैट इज अगेन लॉजिक ऑपरेशन, लेकिन उसको बूलियन नाम दिया गया है, दैट इज द बूलियन and boolean or and boolean not operation. Now these are slightly different. मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स जो है वो अगर आप उसको ट्रू और फॉल्स कंसिडर करें, लेट्स से बूलियन ऑपरेशन या बूलियन, आपने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया और बूल जो है दैट इज ऑफ 8 बिट्स, तो हम बूल को ट्रू और फॉल्स में ट्रांसलेट करते हैं कि ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो वो ट्रू फॉल्स कब होगा? अगर इसमें 0 हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स, लेकिन ट्रू कब होगा? ऑल अदर वैल्यूज, अगर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, क्योंकि ये 8 बिट का पूरा रजिस्टर है, अगर इसमें आप कोई 33 सेव करेंगे तो प्रोसेसर उसको भी ट्रू कंसिडर कर लेता है। लेकिन अगर इसमें 0 हुआ, सारे के सारे बिट्स जो है वो 0 हुए, तो फिर ही प्रोसेसर इसको मानता है कि हाँ ये 0 है ये वैल्यू। तो द सेम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हियर, कि अगर आपके पास लेट से ये नंबर है, लेट से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज अ कंप्लीट नंबर, तो दिस इज एंड दिस वन, यहाँ पे आप इसको देखें कि लेट से these numbers, यहाँ पे this is 1 and this one is 0, and then again this one is 0 and this one is 1. तो इसमें तो सिंपल है कि 1 और 0 that is resulted in 0, and at the same time this one is 0 and 1, तो the result is 0 again. लेकिन यहाँ पे इस केस में आप देखें कि 1 and 0 का जो रिजल्ट आएगा that is equal to 1. अगर आप बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा, लेकिन अगर आप बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड एज 1, क्योंकि ये भी ट्रू है एंड दिस वन इज ट्रू एज वेल, तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा दैट विल बी ट्रू। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बूलियन एंड ये जो आपको ब्लैक में मैंने यहाँ पे राइट साइड पे ड्रॉ किया है, दैट इज द बूलियन ऑपरेशन, जो कि आपको इस डबल एंड ऑपरेशन से समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर हम सिंगल एंड यूज कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट इज द बिट वाइज एंडिंग ऑपरेशन। तो दैट्स द डिफरेंस, कि अगर आप बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं या बूलियन एंड परफॉर्म कर रहे हैं, सो द रिजल्ट कैन बी डिफरेंट। सर ये तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमने सी के अंदर ये ऑपरेशन पढ़ा हुआ है बूलियन का, लेकिन इसको जब असेंबली में हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ये तो रजिस्टर्स के अंदर आप कह रहे हैं ना कि वो सारा चेक करेगा कि ये जीरोज में है या 1 में है, तो फिर वो ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन देगा। तो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काफी। एग्जैक्टली ये ये देखो ये कहाँ पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं? मतलब ये कील वगैरह आगे जो हम पढ़ेंगे असेंबली, वहां पे होगा यूज ये इसका?
हाँ, यूज कहाँ पे होगा उसका शायद मैं आपको अभी डायरेक्ट एग्जांपल ना दे सकूं, बट एट द मोमेंट आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करें कि जो कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर है वो आपको दो तरह की लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि अगर आपको कौन से यूज करने हैं, कि अगर आपको बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करनी है तो आप फिर ये यूज करें। कुछ जगहों पे होती है कि हमने दो वैल्यूज की बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करनी है, तो देन वी नीड टू यूज द बिट वाइज एंडिंग। लेकिन अगर हमें दो वैल्यूज है, लेट्स से एक्स एंड वाई हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और हम देखना चाह रहे हैं कि एक्स भी ट्रू है या वाई, एक्स एंड वाई दोनों ट्रू है या नहीं है, तो हम फिर बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई को चेक करने के लिए। लेकिन अगर लेट्स से हमारे पास एक्स एक रजिस्टर है और उसमें 32 बिट्स हैं, और उसमें हम कुछ जो बीच के लेट्स से 4 या 5 बिट्स हैं उसको हम ज़ीरो करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करेंगे, बिट वाइज एंडिंग होगी, और फिर हम यहाँ पे 1 1 1 और 0 0 0 परफॉर्म दे देंगे, 1 1 1। तो अगर आप इसकी एंडिंग परफॉर्म कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप जब एंड ऑपरेशन 1 का किसी भी चीज के साथ करते हैं तो वो आपका वही नंबर आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको 0 के साथ एंड करते हैं तो वो 0 बन जाता है, ठीक है। तो द रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी है वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, और जो ये बिट्स हैं जो जिसको हम 0 करना चाह रहे थे वो 0 हो जाएंगे। तो वी हैव परफॉर्म दिस टास्क। लेकिन अगर हमने दो वैल्यूज है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है, तो हम फिर बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो एट द मोमेंट हम उसके एप्लीकेशंस, इसको जस्ट आप एक एज एग्जांपल ले सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, के प्रोसेसर हमें फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, या इतनी हमें पावर प्रोवाइड कर रहा है कि हम दो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, Yes, sir, got that. सी ओके। सिमिलरली आप इसको भी देख लें कि जब हम बिट वाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन दिस नंबर, तो ये जो नंबर है ये अगर आप इसको बाइनरी में देखें तो ये है 0 0 0 1 1 1 1, ये वाला नंबर। इसका जब हम बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करते हैं तो इट विल बिकम 1 1 1 1 एंड 0, नो दिस इज 1, ये होगा 0 0 0 एंड 1, ठीक है। ये है 0 0 0 एंड 1, चूंकि ये 1 है, ठीक है, मैंने गलत लिख लिया था। तो अब इसका जब आप बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करेंगे, सो दिस विल बी 1 1 1 एंड 0, ठीक है। तो अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करें, सो इट रिप्रेजेंट्स एफ एंड ई, ठीक है। तो रिजल्ट आप देखें कि बिट वाइज एंडिंग जब हमने परफॉर्म की तो 0 1 कन्वर्ट हो गया एफ एंड ई में, बट एट द सेम टाइम अगर आप बूलियन नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो देन दिस इज ट्रू। लेकिन अगर आप इसका बूलियन नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करें, सो द रिजल्ट इज फॉल्स, जो कि फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड एज 0, ठीक है। सो कितना डिफरेंस आ गया कि हम अगर बूलियन नॉट ऑपरेशन यूज करें या बिट वाइज नॉट ऑपरेशन यूज करें, रिजल्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। सो द पॉइंट that is to be taken away from here is that bitwise logic operation and Boolean
लॉजिक ऑपरेशंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आगे फिर हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस में कि हम इसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट मी क्लियर दिस थिंग एंड देन अच्छा, ये इसकी अब समरी हमारे पास आ गई दैट इन 8-bit Boolean representation 0 is considered as 0 is considered as 0 and all other values are considered as 1, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। और इसी को अगर आप अंडरस्टैंड करें so then you can distinguish between the Boolean wise logic operations and bit wise logic operations। अच्छा, ये अगेन सम इंस्ट्रक्शंस देयर आर कि हम किसी रजिस्टर्स की अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करना चाहें तो देन वी कैन यूटिलाइज दिस इंस्ट्रक्शन एज वेल कि ये हमारा एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा और एक जो है सोर्स रजिस्टर होगा, लेकिन वो उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर लेगा बिफोर मूविंग इट टू द destination register. Again, this is a different one कि वो bitwise reverse है। This second instruction is byte-wise कि जो ये byte 0 है वो इस byte 3 की जगह पे आ जाएगा। Similarly, byte 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा and byte 2 जो है that will come here and byte 3 जो है that will come here। ठीक है, so this is what we mean by reverse order byte wise। और प्रीवियस केस में वो बिट को रिवर्स कर रहे थे। यहाँ पे आप देखें कि 0 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 2 जो है वो इधर आ रहा है। so this is the difference between it। Similarly, आप रिवर्स 16 बिट्स को भी कर सकते हैं कि वो 16 बिट्स को शफल कर लेता है। एंड देन सिमिलरली हम कुछ बाइट्स को की ऑर्डर को रिवर्स कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे जो 16 बिट्स हैं उसको 1 के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं that we can see in the future, but for this lecture you need to understand कि जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट में जो जो इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहे हैं वो कैसे काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूज होंगे दैट वी विल सी लेटर, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे काम परफॉर्म कर रहे हैं। साइन एंड ज़ीरो एक्सटेंशन के अगर आपने कुछ साइन एक्सटेंशन नॉर्मली मीन्स कि आप वंस को ऐड करते हैं किसी भी रजिस्टर में, और ज़ीरो एक्सटेंशन को द नेम इज़ वेरी क्लियर कि हम ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में। ठीक है, ये कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर हमने साइन या ज़ीरो एक्सटेंशन करनी है तो देन यू कैन लुक इनटू दीज इंस्ट्रक्शंस एज वेल। कुछ थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें और बुक से इसको रीड करें, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर्स, आई वांट टू स्टॉप, लेकिन लेट्स सी मेरे पास कितने स्लाइड्स और हैं। अच्छा, काफी स्लाइड्स रहते हैं। Okay, so if you want to move the data between registers, so move मैंने आपको कुछ examples में मैंने use भी किया। so then this is the register destination register, और हम एक register से दूसरे register में move कर लेते हैं। so the names sometimes are very clear। Similarly, move n के हम
उसको मूव करने से पहले उसको इन्वर्ट कर लें, तो सारे के सारे जो बिट्स हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन वी स्टोर इट इन दैट रजिस्टर। सिमिलरली मूव इमीडिएट नंबर, यहाँ पे तो हम रजिस्टर को स्पेसिफाई कर रहे थे कि ये रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में मूव हो जाए, बट वी कैन स्पेसिफाई सम नंबर एज वेल, कि हमने अगर कोई 16 बिट नंबर को मूव करना है इनटू आर नॉट, तो हम इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ बैरल शिफ्टर पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे एंड देन आई वी कैन स्टॉप ओवर हियर। If you have any questions until this point, so let me know. नहीं, क्लियर है सारी चीजें? यस सर, क्लियर है। ओके, बुक को आप देखते रहें, हम बुक के उसको ही फॉलो कर रहे हैं, उसके जो सेक्शंस हैं, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बुक से मिल जाएंगी एंड आप इस जो हमने लेक्चर लिया है इसको भी वहाँ से टेली करें, तो देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने आपको आज कील भी थोड़ी सी उसको दिखा दिया। यू हैव यूज्ड द कील माइक्रोविजन एज वेल, तो you can practice on it के how can we make a project and how can we write the assembly instruction, और वहाँ पे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस परफॉर्म कर लेंगे कि आप कोई एक टेस्ट प्रोग्राम लिखें एंड देन ऑब्जर्व द रजिस्टर्स के वो वैल्यूज़ किस तरह से चेंज हो रही है एंड हाउ द फ्लैग्स आर चेंज्ड, तो उसको पहले पेज पे परफॉर्म करें कि मैंने ये इंस्ट्रक्शंस लिख ली है। नाउ आई थिंक कि ये या आई कैलकुलेट कि ये जो फ्लैग्स है ये इस तरह से अपडेट होंगी, कैरी फ्लैग ये होगा, ज़ीरो फ्लैग ये होगा, नेगेटिव फ्लैग 1 होगा या 0 होगा, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड यू कैन वेरीफाई कि आपने ठीक तरह से उसको कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया या नहीं। ठीक है, if no questions then we can stop here and we can call it a day. If you have any questions, anything, you can send me any message or email, and then I see you in the next class, inshallah. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।